गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है पीरियोडिसिटी। इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द पीरियोडिक कैरेक्टर, दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी. In this class we will discuss about the factor affecting the ionization enthalpy. We have seen that the effective nuclear charge, ionization potential directly proportional to Z effective. Yes. Then we have seen on moving from left to right, the ionization potential will be increases. Just मैं review दे रही हूँ चैप्टर का, फिर आगे बढ़ते हैं. आयनाइजेशन पोटेंशियल लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है. रीज़न क्या है? ड्यू टू इंक्रीजिंग द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड विद द न्यूक्लियस, सो वी कांट रिमूव इजीली इलेक्ट्रॉन्स, सो वी नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी इंक्रीजेस. ओके. और फिर उसके अंदर दो वेरिएशन आए हमारे, एक तो आया पेनिट्रेशन पावर, दूसरा आया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. In penetration power we have seen that penetration power of any subshell is a term which tells us about that how can we approach the nucleus towards the nucleus. So we can say that the s orbital is closest to the nucleus. After that there is the long distance in p orbital, or after that d and f. We can say that s orbital is nearest to the nucleus, so isolation of electron from the s orbital is very very difficult. The penetration order is s, then p, देन पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर आया था सबसे ज़्यादा एस, उसके बाद में पी, फिर डी, सबसे कम कौन होता है, एफ. सो एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना काफ़ी डिफिकल्ट होता है. देन पी, फिर डी और एफ में से इजीली इलेक्ट्रॉन आइसोलेट हो जाते हैं. सो देर इज़ अ वेरिएशन ऑन मूविंग फ्रॉम. सो देर इज़ अ वेरिएशन. हमने पढ़ा तो ये था कि लेफ्ट से राइट जाने पर ऑर्डर ये होना चाहिए, ठीक है ना. बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. बट देर इज़ अ वेरिएशन. द आईपी वैल्यू ऑफ बेरिलियम इज़ हायर देन द बोरोन. उसका रीज़न क्या पड़ा था? हाई पेनिट्रेशन पावर ऑफ बेरिलियम, बिकॉज इन बेरिलियम द लास्ट इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड इन एस ऑर्बिटल, वाइल इन बोरोन last electron will be filled in p orbital. So this is easy to isolate the electron and then this, because the high penetration power of s orbital then p orbital, so we need high amount of energy in beryllium than boron. तो फर्स्ट जो एक्सेप्शन है वो तो ये आया है पेनिट्रेशन पावर का. सेकंड कॉन्फ़िगरेशन का क्या आया है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सेकंड क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि सेकंड चैप्टर में after seeing the all rules for the electron filling principles, we conclude that the electronic configuration which have half filled and full filled configuration are more stable than the other configurations, in which specially I have highlighted two examples. First one is a chromium and second one is copper. याद आया हो तो 3d5 4s1 और 3d10 4s1 दो कंडीशन रखी थी. 9 की बजाय 10 रखा था और 4 की बजाय 5 रखा था आइसोलेट करके उसको. तो मैंने हाईलाइट भी किया था कि दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने थे. उसका रीज़न क्या था? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. In a period when we move from left to right, we have seen that if we discuss about the electronic configuration of nitrogen, then we found that 1s2 2s2 2p3 orbital view is this. In this view you can see that there is a half filled electronic configuration. Each orbital have the single electron. Such type of electronic configuration is half filled. If all electrons are paired, then full filled electronic configuration, which is found in inert gases. Okay. In this half filled electronic configuration, it means nitrogen tends to maintain this electronic configuration because this is more stable electronic configuration. If we want to remove one electron from this configuration, then nitrogen does not try to donate its electrons. So if the condition is mild, then the electron will be knocked out.
सिंपल कंडीशंस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहेगा, लेकिन अगर माइल्ड कंडीशंस यूज़ करेंगे, स्ट्रॉन्ग कंडीशंस अप्लाई करेंगे, देन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन ट्राई टू मेंटेन द हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इसके लिए ज़्यादा आईपी की वैल्यू रिक्वायरमेंट होती है। जबकि ऑक्सीजन को अगर आप कंसिडर करोगे, देन 1s2 2s2 2p4 ऑर्बिटल व्यू वी हैव सीन दैट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। इसका मतलब है ये कि लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इट ट्राई टू गेन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन देगा और ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड गेन करने की कोशिश करेगा। तो ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजीली हो जाएगा, कम एनर्जी पे हो जाएगा, जबकि नाइट्रोजन के अंदर ये क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी इसके लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम ऑर्डर डिसाइड कर दें, है ना, अगर हम ऑर्डर डिसाइड करते तो जैसे ऑर्डर हमने लिखा है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है जेड इफेक्टिव के बेसिस पे, तो ये होना चाहिए था। जबकि होता किसका है, नाइट्रोजन का ज़्यादा ऑक्सीजन का कम। किस वजह से हो गया, ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हो गया। ये ऑर्डर नाइट्रोजन में ही नहीं, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस आता है, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे सल्फर आता है। इस पीरियड के अंदर भी यही रूल फॉलो होगा, ठीक है ना। जिस तरीके से नाइट्रोजन, या फिर आप ये बोल सकते हो ग्रुप 15 हैव हायर वैल्यू देन ग्रुप 16, ये भी बोल सकते हो, तो भी कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि 15 ग्रुप वालों का क्या होता है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 16 वालों का हाफ फील्ड नहीं होता है। तो ये भी आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15th वालों, सॉरी आईपी 15th का ज़्यादा, 16th का कम होता है। अब देखो, ये वही बातें लिखी है मैंने, ये लिखा है बिकॉज नाइट्रोजन एटम रिक्वायर मोर एनर्जी टू आइसोलेट इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट वांट टू मेंटेन द हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो मोर दिस कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन द अदर कॉन्फ़िगरेशंस। ये इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। अब देखो बात ये आई है कि हमने ऑर्डर ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आईपी इंक्रीजेस, है ना। तो मैं पहले तो ये बता देती हूँ आपको, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हो आप, ठीक है। हमने ये पढ़ा है कि आईपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसका रीज़न क्या है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पावर, जिसको आप जेड इफेक्टिव भी बोल देते हो, ठीक है। बट ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर एंड हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, there is some variation that are following. कोई दिक्कत नहीं है, जो पढ़ा है वो बिल्कुल ठीक है। लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या हो रही है, आईपी इंक्रीज हो रहे हैं। रीज़न क्या है, जेड इफेक्टिव। बट वेरिएशन किसकी वजह से आ रहा है, एक तो आएगा ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर, और दूसरा किसकी वजह से आएगा, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एक वेरिएशन आएगा। मैं स्टार्टिंग से लिख रही हूँ, मैंने लिखा है बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। Arrange the following in increasing order of IP। आपको ये क्वेश्चन मान लो एक, कि इन एटम्स को, और आपको है ना आईपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैनेज करना है। पढ़ा तो ये है कि लेफ़्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होगा, कॉन्सेप्ट भी यही रखें कि लेफ़्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होगा। बट आपने पढ़ा है ड्यू टू पेनिट्रेशन पावर एक वेरिएशन आएगा, बेरिलियम आगे, बोरोन पीछे, तो रख दो सबसे पीछे बोरोन, बोरोन से ज़्यादा किसका, बेरिलियम, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन का कोई एक्सेप्शन पड़ा है, नहीं। देन क्या आएगा, कार्बन। उसके बाद में आपको लिखना है नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में एक बार फिर रिवर्स होता है, तो पहले ऑक्सीजन
देन क्या होगा नाइट्रोजन, देन क्या होगा क्लोरीन। तो एक तो आपको ये याद रखना है और एक ये याद रखना है, समझ गए? ठीक है, ये क्या है पेनिट्रेशन पावर की वजह से और ये क्या है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने बोला है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आईपी ऑर्डर बताना है इनका इंक्रीजिंग। क्वेश्चन है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आईपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको मैनेज करना है। बेरिलियम वाली लाइन में ही मैग्नीशियम आता है, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आता है, तो आपको सेम ऑर्डर फॉलो करना है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सबसे पीछे, उसके आगे कौन मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस सल्फर में से सल्फर का कम फास्फोरस का ज़्यादा, देन क्लोरीन। एक वेरिएशन तो आ गया इन दोनों के बीच में और एक वेरिएशन आ गया इनके बीच में। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। होप सो कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। अगला जो ट्रेंड आता है उसके अंदर हम पढ़ते हैं ऑन मूविंग फ्रॉम अप टू डाउन इन ए ग्रुप ड्यू टू less effective nuclear charge, electrons are loosely bonded, so can easily isolated. With few amount of energy, we can say on moving from up to down IP डिक्रीजेस। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या होगा ऊपर से नीचे जाएंगे, न्यूक्लियस का पावर बिल्कुल इफेक्टिव नहीं रहेगा, और इफेक्टिव नहीं रहेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं लूजली बॉन्डेड है, और लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को आइसोलेट करने के लिए हमको ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती है एनर्जी की, इसलिए बहुत कम एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है। कई बार तो ऐसे होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे ही क्या होती है इलेक्ट्रॉन दे देती हैं जो भी मेटल्स होती हैं वो। इसके आगे देखेंगे दूसरा फैक्टर क्या होता है। अब देखो जैसे एग्जांपल लिया मैंने, जैसे पहला एग्जांपल तो ले लिया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम को मोस्टली नहीं लेते हैं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। सो हमने यही पढ़ा है कि अप टू डाउन जाएंगे तो आईपी की वैल्यू डिक्रीज होगी। ये लो, ये ऑर्डर किसका है, आईपी का ऑर्डर हो गया। जैसे और देख लो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, देन सल्फर, ये हो गया। इसमें एक टेक्निकल क्वेश्चन करवाती हूँ आपसे। देखो मैंने लिखा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, और इसको आपको किस में आईपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैनेज करना है। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से लिख देती हूँ मैं इसको। आपके पास है ग्रुप 15, ग्रुप 16। ग्रुप 15 के नीचे नाइट्रोजन, फास्फोरस, और इसके नीचे ऑक्सीजन, सल्फर। रूल के हिसाब से लेफ्ट टू राइट जाओगे इंक्रीज होना चाहिए, बट नाइट्रोजन एक्सेप्शन वाला केस है। सबसे ज़्यादा किसका, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन का। ऊपर से नीचे जाते हो तो क्या होती है, कम होती है। अब देखो इनमें तो सबसे ज़्यादा किसका हो गया, नाइट्रोजन का, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इसके अंदर ठीक है नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। अब बात आती है इन दोनों में से पहले किसको लें, तो इन दोनों में से पहले लेने के लिए आपके पास सल्फर और ये है,
तो होना तो सल्फ़र का ज़्यादा चाहिए था, लेकिन सेम ट्रेंड यहाँ फॉलो होगा कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा, तो सल्फ़र से ज़्यादा किसका होगा, फॉस्फोरस का होगा, तो फॉस्फोरस का ज़्यादा होगा किससे, इससे। तो इसको लिखने के लिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, देन ये, देन ये, देन ये। ऑर्डर क्या हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फ़र। हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज लेवल थोड़ा सा ज़्यादा खिंच गया इसका, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक सिंपल देखो, जैसे मैंने लिखा है कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फास्फोरस, बिलोंग्स फ्रॉम ग्रुप 14, ग्रुप 15। कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है ना। हमने ये पढ़ा है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आईपी ऑर्डर इंक्रीजेस। इन दोनों में से ज़्यादा किसका, ऊपर वाले का। अप टू डाउन जाने पर कम होगा, ठीक है। इन दोनों में से ज़्यादा किसका है, नाइट्रोजन का, ठीक है। इन दोनों में से ज़्यादा फॉस्फोरस का, तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में कार्बन। इन दोनों में से किसका लें, क्योंकि इनमें लेफ़्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होगा, तो पहले इसका और सबसे कम इसका। ऑर्डर क्या आएगा, सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके बाद में कार्बन, उसके बाद में फास्फोरस, से ये क्रिटिकल लेवल ले लिया वैसे। हालांकि आप लोगों के लेवल पे इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस को होल्ड किस तरीके से करना है। वहीं पे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछते, सबसे कम किसका है, तो ऊपर वालों का तो कम हो ही नहीं सकता, नीचे वालों का कम है। नीचे भी आगे और पीछे दोनों है, तो इसका ज़्यादा इसका कम, तो स्टार्ट कहाँ से करते, इससे फिर इसका। इन दोनों में से पीछे वाले का कम, इसका सबसे ज़्यादा, बात वो की वही आती है। अब देखो आईपी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आइसोलेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। एक वर्ड आएगा आप लोगों के मेटल, और एक आएगा नॉन मेटल। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर देते हैं, ठीक है ना। मेटल्स वो होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। इजीली जो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उनका आईपी क्या होता है, कम। इसका मतलब इजीली कौन देगा, जिसका आईपी बहुत कम होता है। आईपी मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी बहुत कम होती है। इसका मतलब जिसके लिए आईपी कम है वो अच्छा मेटल है। और नॉन मेटल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं देते। नहीं कौन देते हैं, जिनका आईपी बहुत ज़्यादा होता है। लेफ़्ट से राइट गए तो आईपी इंक्रीज होता है, इसका मतलब करेक्टर कैसा बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है। और अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, है ना, अप टू डाउन आ रहे हो, तो आईपी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। आईपी डिक्रीज होता है, इसका मतलब मेटेलिक करेक्टर होता है। तो आप ये लिख सकते हो, लेफ़्ट से राइट जाने पर तो नॉन मेटल इंक्रीज होंगे, और अगर आप अप टू डाउन जाते हो तो कौन सा करेक्टर इंक्रीज होगा, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा। मेटल मतलब इजीली इलेक्ट्रॉन देना, इजीली इलेक्ट्रॉन देना मतलब आईपी कम होना। नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं देना, नहीं देना मतलब आईपी बहुत ज़्यादा होना। आईपी किधर ज़्यादा होती है, लेफ्ट से राइट जाने पर। वी कैन से दैट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन राइट पार्ट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर नॉन मेटल, इन डाउन पार्ट द मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल। नीचे के एलिमेंट्स लगभग में क्या होते हैं, मेटल्स होती हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटल्स इंक्रीज होता है। अब देखो आईपी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने मोस्ट ऑफ वेरिएशन आपको करवाएं कि आईपी क्या होता है, उसकी लेफ़्ट से राइट जाने पर क्या कॉन्सेप्ट है, अप टू डाउन जाने पर क्या कॉन्सेप्ट है। अप टू डाउन वालों में आप लोगों के कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। लेफ़्ट से राइट वालों में ध्यान रखना आपको, एक तो पेनिट्रेशन पावर, दूसरा क्या रखना है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा ना तो दोनों टर्निंग पॉइंट से ही आता है। मेरी तरफ से आयनाइजेशन पोटेंशियल कंप्लीट हो गया है। एक ये ध्यान रखना कि जो आप लोगों की सिलेबस रिड्यूस हुआ है, आगे से हम वो सिलेबस करेंगे जो आपका बचा हुआ है, ठीक है ना। बाकी इसमें जो भी रहेगा उसको मैं देखने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आगे की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह है वो टॉपिक आगे आएंगे, तो उसको अपन ड्रॉप कर देंगे अगर उनको रिड्यूस कर दिया है। फाइनली सिलेबस आ गया अपने पास में ये, ठीक है। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। 12th वालों की तो प्लानिंग चल रही है, होप सो आपकी भी क्लास शुरू हो जाए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।